اسلامک شارٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ہیرا پر مسلمانوں کے قبضے کی تکمیل ہو گئی۔ معاہدے کے بعد تمام قلعہ داروں اور عمرا نے خالد رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ دراصل خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اطاعت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام تر فوج کے ساتھ 8 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے۔ فارغ ہونے کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج سے مختصر سا خطاب کیا۔ بولے، موتا کی لڑائی میں میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، لیکن آتش پرستوں نے جس جوامردی سے مقابلہ کیا ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے الیس میں ہم سے جو لڑائی لڑی ہے، ایسی لڑائی میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ اسلام کے پاسبانوں، فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے نام کو، اس کی نعمتوں کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دل میں رکھو۔ ہیرا بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے، جہاد ختم نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شہیدوں کے لیے دعائیں مغفرت کی، پھر زخمیوں کی عیادت کو گئے۔ شہیدوں کی نماز جنازہ بڑا ہی رقت آمیز منظر تھا۔ وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا تو یہ قبریں تاریخ کی سنگھائے میل بن گئیں۔ خالد رضی اللہ عنہ جب ہیرا کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اس محل نما مکان میں گئے جو ازدابا کا رہائشی مکان تھا، تو بے شمار رؤسا اور عمرا تحفے لیے کھڑے تھے جو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو پیش کیے۔ ان میں بیش قیمت اشیاء تھیں، ہیرے اور جواہرات بھی تھے۔ مدینہ کے مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند بھی ہو سکتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ تحفے قبول تو کر لیے، لیکن بوریا نشینوں کی قوم کے اس سالار اعلیٰ نے اپنے لیے ایک بھی تحفہ نہ رکھا۔ تمام تحفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیے۔ مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہیرا والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی۔ ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا۔ کچھ برس پہلے کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی۔ باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف مڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل نکلا۔ ہیرا اس شہنشاہی کا بڑا ہی اہم مقام تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ ہیرا ہاتھ آ جائے تو اسے فوجی اڈا بنا کر کسرا پر کاری ضربیں لگائی جا سکتی ہیں۔ 2 مورخوں بلازری اور تبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑے عرصے کے بعد ہیرا ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں ہیرا کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگی۔ عبد المسیح مشہور آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرامہ تھا۔ اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانی دور دور تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال ضرب المثل بن گیا تھا۔ بلازری اور تبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں سیدھا سادہ اور عام سا ایک آدمی شویل بھی موجود تھا۔ شویل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ہیرا فتح ہو گیا تو عبد المسیح کی بیٹی کرامہ مجھے دی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ازراہ مذاق کہا، ہیرا فتح ہو گیا تو کرامہ بنت عبد المسیح تیری ہوگی۔ ان مورخوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہیرا کی فتح سے کتنا عرصہ پہلے یہ بات ہوئی تھی۔ اب ہیرا فتح ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کا ایک ادھیڑ عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑا ہوا جب کچھ شرائط عبد المسیح اور خالد رضی اللہ عنہ کے درمیان طے ہو رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے اس سپاہی سے پوچھا، کیا نام ہے تیرا اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سپاہی نے کہا، سالار اعلیٰ، میرا نام شویل ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عبد المسیح کی بیٹی کرامہ تجھے دی جائے گی۔ آج ہیرا فتح ہو گیا ہے، شہزادی کرامہ مجھے دی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی خلاف ورزی کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن گواہ نہ ہوئے تو میں تیری بات کو سچ بھی نہیں مان سکتا۔ شویل کو 2 گواہ مل گئے۔ وہ ہیرا کی فاتح فوج میں موجود تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں شویل سے یہ وعدہ فرمایا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عبد المسیح سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔
तुझे अपनी बेटी इस शख्स के हवाले करनी होगी। अब्दुल मसीह ने कहा, ये भी शराइत में लिख लो कि मेरी बेटी किरामा इस सिपाही को दे दी जाए। ये हुक्म अब्दुल मसीह के घर पहुंचा कि किरामा मुसलमानों के सालारे आला के पास आ जाए। किरामा ने पूछा कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। उसे बताया गया कि एक मुसलमान सिपाही ने उसकी ख्वाहिश की है और उसे उस सिपाही के हवाले किया जाएगा। घर में जो एक महल की मानंद था, दूसरी औरतों का शोर उठा। ऐसा न होने दो, ऐसा मत होने दो। शाही खानदान की एक औरत को हवाले न होने दो जो अरब का वहशी बद्दू है। किरामा ने कहा, मुझे उसके पास ले चलो। उस मुसलमान सिपाही ने मेरी जवानी के हुस्न की बातें सुनी होंगी। वो कोई जाहिल और अहमक लगता है। उसने किसी से ये नहीं पूछा होगा कि ये कब की बात है कि जब मैं जवान हुआ करती थी। बिलाजरी की तहरीर के मुताबिक किरामा को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ले जाया गया। शुवैल मौजूद था। उसने एक ऐसी बुढ़िया देखी जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और बाल सफेद हो चुके थे। मौर्रिख तबरी ने किरामा की उम्र 80 साल लिखी है। उसके बाद अब्दुल मसीह ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी उम्र 200 साल बताई थी। बाज मौर्रिख इन उम्रों को तस्लीम नहीं करते। अब्दुल मसीह की उम्र 100 साल से जरा ही ज्यादा थी और किरामा की उम्र 60-70 साल के दरमियान थी। बहरहाल किरामा ज़ईफुल उम्र थी। शुवैल ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर जो खुशी के आसार थे वो उड़ गए और वो मायूस हो गया। अचानक उसे एक ख्याल आ गया। शुवैल ने कहा, अमीर लश्कर, ये शर्त लिखी गई है कि किरामा बिनते अब्दुल मसीह मेरी लौंडी है। अगर ये मुझसे आजादी चाहती है तो मुझे रकम अदा करे। किरामा ने पूछा, कितनी रकम? शुवैल ने कहा, 1000 दिरहम। मैं अपनी माँ का बेटा नहीं हूँगा कि 1 दिरहम भी बख्श दूं। किरामा के बूढ़े होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने उस खादिमा को जो उसके साथ आई थी इशारा किया। खादिमा दौड़ी गई और 1000 दिरहम ले आई। किरामा ने ये दिरहम शुवैल के हवाले कर दिए और आजाद हो गई। शुवैल का ये आलम था कि 1000 दिरहम देखकर हैरान हो रहा था जैसे उसके होश गुम हो गए हों। उसने अपने साथियों को जाकर फातिहाना लहजे में बताया कि उसके साथ धोखा हुआ था कि उसने एक ज़ईफुल उम्र औरत को जवान समझ लिया था, लेकिन उसने उससे 1000 दिरहम कमा लिए। उसके साथी ने उसे कहा, सिर्फ 1000 दिरहम? तू सारी उम्र अहमक ही रहा। किरामा शाही खानदान की औरत है, उससे तू कई हजार दिरहम ले सकता था। शुवैल ने मायूस होकर कहा, अच्छा, मैं तो समझता था कि 1000 दिरहम से ज्यादा रकम होती ही नहीं। उसके साथियों के एक जोरदार कहकहे ने उसे और ज्यादा मायूस कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने माल गनीमत के साथ तमाम तोहफे मदीना भेज दिए। मदीना से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अमीरुल मोमिनीन ने पैगाम भेजा कि ये तोहफे अगर माल गनीमत में शामिल हैं या जिज़िये में तो काबिल कबूल हो सकते हैं। अगर नहीं तो जिन्होंने ये तोहफे दिए हैं उनसे उनकी कीमत मालूम करके जिज़िये में शामिल कर लो। अगर तुम जिज़िया वसूल कर चुके हो तो तोहफों की रकम उन लोगों को वापस कर दो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन सबको बुलाकर उन्हें तोहफों की कीमत अदा कर दी। हीरा की फतह के बाद चंद दिनों में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहाँ का नज़्म व नस्क रवां कर दिया और हीरा के उमरा को ही इंतजामिया का जिम्मेदार बना दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों से कहा, मेरे भाइयों, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं यहाँ बैठा रहूं, लेकिन नज़्म व नस्क की बहाली बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा जरूरी ये है कि नज़्म व नस्क को इस बुनियाद पर रवां किया जाए कि लोगों को फायदा पहुंचे, वो सुकून और इत्मीनान महसूस करें कि उनकी जानो माल और उनकी इज्जत आबरू को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। खुदा की कसम, मैं इन लोगों पर, ईसाइयों पर और इन आतिश परस्तों पर साबित करूंगा कि इस्लाम वो मजहब है जो जुल्म को बहुत बड़ा गुनाह समझता है। रियाया को अपनी औलाद समझो। क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने नज़्म व नस्क उन्हीं लोगों के सुपुर्द कर दिया है? रब्बे काबा की कसम, मैं इन पर अपना हुक्म नहीं ठूसूंगा। अपना हुक्म न ठूसने के नताइज चंद दिनों में सामने आ गए। इस्लाम का बुनियादी उसूल यही था कि लोगों के दिल जीतो, मगर दिल जीत कर उन्हें धोखा न दो, उन्हें उनके हुकूक दो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले सालार थे जिन्होंने मदीना से निकलकर किसी दूसरी कौम के इलाके फतह किए और उन्हें इस्लाम के उस बुनियादी उसूल पर अमल करने का मौका मिला। मिस्र के मोहम्मद हुसैन हैकल ने बहुत से मौरिखों के हवाले देकर लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मनों के सर उड़ाने शुरू किए तो फरात को लाल कर दिया और ऐसे किसी आदमी को जिंदा न छोड़ा जिसकी तरफ से दीन इस्लाम को जरा सा भी खतरा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जाती दुश्मनी के कायल नहीं थे। मुतासिब तारीख दानों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को जालिम सालार कहा है, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो भी इलाका फतह किया वहाँ का इंतजाम मफ्तूहा, उमरा और रऊसा के सुपुर्द कर दिया। अलबत्ता उनके निगरान यानी बालाई हुकाम मुसलमान मुकर्रर किए जाते थे। हीरा को फतह करके खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारे फारिस को फतह नहीं कर लिया था, बल्कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खतरों में घिर गए थे। आतिश परस्त उन पर चारों तरफ से हमला कर सकते थे।
अगर बड़े पैमाने पर हमले न करते तो शबखून मार मार कर मुसलमानों की फौज को नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन आतिश परस्तों ने ऐसी कोई कार्रवाई न की। इसकी और कई वजूहात थी, जिनमें एक ये थी कि मफ्तूहा इलाकों के लोग मुसलमानों के सुलूक से मुतासिर होकर उनके हामी और मावन बन जाते हैं। हीरा और निवाही इलाके में दैर नातिफ नाम की एक बस्ती थी जो ईसाइयों की बस्ती कहलाती थी। वहाँ एक बहुत बड़ा गिरजा था जिसके पादरी का नाम सलूबा बिन नस्तूना था। वो ईसाइयों का मजहबी पेशवा ही नहीं, उनका अस्करी कायद भी था। वो मैदान जंग में कभी नहीं गया था, लेकिन जंगो जदल के फन में महारत रखता था। फारिस के ईसाई ललकार कर मुसलमानों के मुकाबले में आए थे और मुसलमानों की तलवार और बर्छियों से बुरी तरह कटे थे। ऐसे ईसाइयों की तादाद खासी कम हो गई थी जो लड़ने के काबिल थे। बूढ़े जिंदा रह गए थे या औरतें जिंदा थीं। सलूबा बिन नस्तूना अक्सर कहा करता था कि मजहब सिर्फ एक जिंदा रहेगा और वो ईसाइयत होगी। उसने अपने वाज में कई बार कहा था, ज़रतुश्त रहेगा न मदीना का इस्लाम, सब मिट जाएंगे और जमीन पर यसु मसीह की हुकूमत होगी। हीरा फतह होने तक लड़ने वाले हजारहा ईसाई मिट गए थे। बाकी मुसलमानों के डर से भागकर इधर उधर छुपे थे। उनके सरकर्दा अफराद ने पादरी सलूबा बिन नस्तूना के साथ राब्ता रखा हुआ था। सलूबा ने कोशिश की थी कि ईसाइयों को यकता और मुत्तहिद करके मुसलमानों पर शबखून मारने के लिए तैयार करे, लेकिन ईसाइयों पर मुसलमानों की ऐसी दहशत बैठ गई थी कि वो शबखून और छापामार जंग के लिए तैयार न हुए। एक रात एक नामवर जंगजू ईसाई शुमैल बोरजाना ने पादरी सलूबा बिन नस्तूना से कहा, मुकद्दस बाप, क्या तुम इस पर यकीन रखते हो कि गिरजे की घंटियां और तुम्हारे वाज इस तबाही को रोक लेंगे जो हमारी तरफ तेजी से बढ़ी आ रही है? पादरी सलूबा ने कहा, नहीं, मेरे वाज और गिरजे के घंटे की आवाजें अब उस तबाही को नहीं रोक सकती। शुमैल बोरजाना ने कहा, फिर तुम हमें इजाजत क्यों नहीं देते कि हम मुसलमानों की फौज पर हर रात शबखून मारें? मदीना के मुसलमान जिन नहीं, भूत नहीं, इंसान हैं, हमारी तरह के इंसान हैं। पादरी सलूबा ने कहा, शुमैल, बेशक वो इंसान हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। मैंने उनमें कुछ और ही बात देखी है। वो फतह का अज़म लेकर आए हैं। अगर उन्होंने अपने जिस्मों के मुताल्लिक यही रवैया रखा तो आखिरी फतह भी उनकी ही होगी। शुमैल ने कहा, मुकद्दस बाप, मैं जिस्मों वाली बात नहीं समझा। पादरी सलूबा ने कहा, समझने की कोशिश करो। ये लोग जिन्हें किसरा उर्द शेर अरब के बद्दू कहता रहा है, जिस्मानी आसाइशों और लज्जतों को कबूल नहीं करते। शुमैल ने कहा, मुकद्दस बाप की जबान से दुश्मन की तारीफ अच्छी नहीं लगती। अगर तुम अपने आप में दुश्मन के अच्छे औसाफ पैदा कर लो तो तुम शिकस्त से बच सकते हो। क्या तुम्हारे दोस्तों ने मुसलमानों को जाल में फांसने के लिए 15 हसीन लड़कियां नहीं भेजी थी? क्या तुम ये समझते हो कि तुम लोग जो कुछ करते हो उसका मुझे इल्म नहीं? तुम्हारी तलवारों की धार कुंद हो चुकी है, इसलिए तुमने औरतों को इस्तेमाल किया है। क्या तुम इनकार करोगे? शुमैल ने शर्मसार सा होकर कहा, नहीं मुकद्दस बाप, हमारे एक बुजुर्ग ने कहा था कि एक तलवार एक वार में एक आदमी को काट सकती है, लेकिन एक हसीन औरत का एक वार 100 आदमियों को घायल कर देता है। मुसलमान सवार घोड़ों को झील से पानी पिलाने लाया करते हैं। वो 4-4, 6-6 की टोलियों में आते हैं। झील के इर्द गिर्द ऊंची चट्टानें और घना जंगल है। हमारी लड़कियों ने मुसलमान सवारों को अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन पर कुछ असर न हुआ। हमारी बाज लड़कियां नीम बरहना होकर उन्हें चट्टानों के पीछे चलने के इशारे करती रहीं, लेकिन हुआ ये कि बाज सवार मुंह फेर लेते और बाज हंस पड़ते। पादरी सलूबा ने कहा, और मुझे ये भी मालूम है शुमैल कि तुम लोगों ने मुसलमानों के गश्ती संतरियों को भी फांसने की कोशिश की थी, और तुम लोगों ने ये भी सोचा था कि मुसलमानों के सालारों और खालिद बिन वलीद को कत्ल करने के लिए लड़कियों को इस्तेमाल किया जाए। शुमैल ने कहा, हाँ मुकद्दस बाप, हमने ऐसा सोचा था। पादरी ने पूछा, फिर उस सोच पर अमल क्यों न किया? शुमैल ने जवाब दिया, इसलिए न किया कि जिस फौज के सिपाहियों का किरदार इतना मजबूत है उसके सालार तो फरिश्तों जैसे होंगे। अब हमारे सामने यही एक सूरत रह गई है कि मुसलमान फौज पर शबखून मारने शुरू कर दें और उन्हें इतना नुकसान पहुंचाएं कि वो पसपाई पर मजबूर हो जाएं। पादरी सलूबा ने कहा, क्या तुम किसरा की फौज से ज्यादा ताकतवर हो? वो जो कहते थे कि जमीन पर कोई ताकत उनके मुकाबले में उठने की जुर्रत नहीं कर सकती, अब कहाँ है? आग को पूजने वालों के तमाम नामवर सालार मुसलमानों के हाथों कट गए हैं। हमने उनकी खातिर मुसलमानों से लड़कर गलती की है। शुमैल ने हैरान सा होकर पूछा, तो क्या मुकद्दस बाप तुम ये कहना चाहते हो कि हम मुसलमानों के साथ दुश्मनी न रखें? पादरी सलूबा ने कहा, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं मुसलमानों के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। शुमैल ने कहा, मुकद्दस बाप,
फिर तुम कहोगे कि मुसलमानों के मजहब को भी कबूल करना चाहते हो। पादरी सलूबा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब से हीरा पर मुसलमानों का कब्जा हुआ है, मैं यही देख रहा हूँ कि उनसे हमारे मजहब को कितना कुछ खतरा है। मैंने देख लिया है कि ईसाइयत को कोई खतरा नहीं। मुसलमान अपना मजहब कबूल करने की दावत देते हैं, वो जबरदस्ती अपना मजहब मफ्तूहा लोगों पर नहीं ठूसते। क्या उन्हें मालूम नहीं कि यहाँ एक गिरजा है जिसमें मुझ जैसा जहाँ दीदा और मजहब पर मर मिटने वाला पादरी मौजूद है? उन्हें मालूम है शुमैल, मैं 2 इतवार गिरजे में आने वाले ईसाइयों के हुजूम में 2 अजनबी आदमियों को देखता रहा हूँ। मैंने उनके गलों में सलीबें लटकती देखी थी। वो हर लिहाज से ईसाई लगते थे, लेकिन मेरी दूरबीन निगाहों ने भांप लिया था कि वो दोनों मुसलमान हैं और वो मदीने के नहीं, फारिस के रहने वाले हैं। वो वलीद के बेटे खालिद के जासूस थे। मैं अपने वाज में मोहतात रहा। शुमैल ने कहा, मुकद्दस बाप, अगर तुम मुझे इशारा कर देते तो वो दोनों जिंदा वापस न जाते। पादरी सलूबा ने कहा, फिर इस गिरजे की ईंट से ईंट बच जाती। अक्ल और जोश में यही फर्क है शुमैल। तुम में जोश है और मैं अक्ल से काम ले रहा हूँ। मैं तुम लोगों को मुसलमानों पर शबखून मारने और लड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। 2-3 रोज बाद पादरी सलूबा बिन नस्तूना गिरजे में तमाम ईसाई सरदारों से कह रहा था, हकीकत को देखो, किसरा की इतनी जबरदस्त फौज मदीना की कलील सी फौज के मुकाबले में नहीं ठहर सकी। तुमने भी मुसलमानों का मुकाबला करके देख लिया है। अब मुसलमानों से टकरा कर तुम तबाह हो जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वक्त का साथ दो। मुसलमानों ने तुम्हारे मजहब के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। उन्होंने हमें और आतिश परस्तों को भी अपनी अपनी इबादत गाहों में इबादत की इजाजत दे रखी है। मुसलमानों ने अदल इंसाफ में जो मसावात कायम की हैं वो तुम खुद देख रहे हो, और तुम ये भी देख रहे हो कि तुम उनके खिलाफ आतिश परस्तों के दोष बदोश लड़े थे, लेकिन मुसलमानों ने तुम्हारे खिलाफ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने काश्तकारों की जमीन पर कब्जा नहीं किया, उनकी फसलों में अपने घोड़े और ऊंट नहीं छोड़े, बल्कि आतिश परस्त हाकिम उन गरीब किसानों पर जो जुल्म तशद्दुद करते और उनकी खेतियों की पैदावार उठा ले जाते थे, ये लूट खसूट खत्म हो गई है। इस हकीकत से इनकार न करो कि मुसलमान रियाया को पूरे हुकूक दे रहे हैं। एक सरदार ने पादरी सलूबा को टोकते हुए कहा, तुम पर खुदाए यसु मसीह की रहमत हो, क्या तुम हमें ये तरगीब दे रहे हो कि हम मुसलमानों की इताअत कबूल कर लें? एक और सरदार ने कहा, क्या ये हमारी बेइज्जती नहीं? मुसलमानों ने तुम्हारी इज्जत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पादरी सलूबा ने कहा, क्या तुमने उन्हें फांसने और गुमराह करने के लिए अपनी लड़कियों को नहीं भेजा था? क्या वो तुम्हारी लड़कियों को उठाकर नहीं ले जा सकते थे? और मत भूलो कि किसरा के हाकिमों ने तुम्हारी कितनी लड़कियों के साथ जबरदस्ती शादी की। जिसे जो लड़की अच्छी लगी वो उसे हुक्मन ले गया। और ये भी सोचो कि फारिस के वो सालार और कमांडार कहाँ हैं जिनके साथ मिलकर तुम मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे? क्या उन्होंने तुमसे पूछा है कि तुम किस हाल में हो? क्या उन्होंने आकर देखा है कि तुम में से जो मारे गए हैं उनकी बीवियां किस हाल में हैं, उनके बच्चे कैसे हैं? और मुसलमान तुम्हें सजा तो नहीं दे रहे? एक बूढ़े सरदार ने कहा, बेशक वो हमें भूल गए हैं। एक और सरदार बोला, तू बजा कहता है मुकद्दस बाप, अब हमें बता हमें क्या करना चाहिए, तुम हमें किस रास्ते पर ले जाना चाहते हो? पादरी सलूबा ने कहा, ये तुम्हारी सलामती का रास्ता होगा, इसमें तुम्हारे जानो माल की और तुम्हारे मजहब की सलामती है। मैं मुसलमानों की इताअत कबूल कर रहा हूँ और मैं बानकिया और बिस्मा के इलाके की तमाम काबिल काश्त अराजी का लगान वसूल करके मुसलमानों को अदा करूंगा। तकरीबन तमाम मौरखों ने लिखा है कि मुसलमानों के हुस्न सलूक, अदल इंसाफ और उसलूब हुकूमत से मुतासिर होकर सलूबा बिन नस्तूना ने सबसे पहले खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जाकर इताअत कबूल की और 10,000 दीनार खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को पेश किए। उस रकम के साथ वो हीरे और बेशकीमत मोती भी थे जो किसरा उर्द शेर ने पादरी सलूबा को तोहफे के तौर पर दिए थे। ये मोती दरअसल रिश्वत थी जो उर्द शेर ने ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाने के लिए पादरी सलूबा को दी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से एक मुआहिदा लिखा गया। ये मुआहिदा मदीना के सालार खालिद बिन वलीद और सलूबा बिन नस्तूना की कौम के साथ तय हुआ और तहरीर किया जाता है। उसके मुताबिक सलूबा बिन नस्तूना ईसाई कौम की तरफ से 10,000 दीनार सालाना बतौर जिजिया अदा करेगा और किसरा के हीरे और मोती इस रकम के अलावा वसूल किए जाएंगे। जिजिये की रकम सिर्फ उन ईसाइयों से हर साल वसूल की जाया करेगी जो उसकी इस्तिताअत और तौफीक रखते हैं और जो कमाने के काबिल होंगे। हर किसी को जिजिया उतना ही हिस्सा देना पड़ेगा जितना वो आसानी से अदा कर सकेगा। इस मुआहिदे की रूह से मुसलमानों पर यह फर्ज आयद होता है कि वो मुसलमानों की बस्तियों, बानकिया और बिस्मा को हर तरह का तहफ्फुज मुहैया करें।
पादरी सलूबा बिन नस्तूना को उसकी कौम का नुमाइंदा तस्लीम किया जाता है, जैसा कि उसे उसकी कौम ने तस्लीम किया है। इस मुआहदे पर जो खालिद बिन वलीद ने किया है, तमाम मुसलमान रजामंद हैं और वो उस पर अमल करेंगे। पादरी सलूबा उस इलाके की नामवर शख्सियत थी। इर्द गिर्द के बड़े बड़े सरदार और सरकर्दा अफराद ने जब देखा कि सलूबा ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की इताअत कबूल कर ली है, तो वो सब हीरा पहुंचे और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की इताअत कबूल करने लगे। उन्होंने जो नकद जिज़िया अदा किया वो 20 लाख दिरहम था। मुसलमानों की शजाअत की धाक दूर दूर तक बैठ गई। बड़ा ही वसी इलाका मुसलमानों के ज़ेर नगी आ गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वक्त ज़ाया किए बगैर उस इलाके में इस्लामी हुकूमत कायम कर दी और उन्हीं सरदारों में उमरा मुंतखब करके मुख्तलिफ इलाकों में मुकर्रर कर दिए। उसके साथ ही अपनी फौज के कुछ दस्ते इस मकसद के लिए सारे इलाके में फैला दिए कि कहीं से इस्लामी हुकूमत के खिलाफ बगावत न उठ सके। ये दस्ते सवार थे और बर्क रफ्तार। Islamic showed status